हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे ट्यूब्स एंड कैथेटर्स टॉपिक पर। यहां पर हम डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, ठीक 5 बजे, वो भी नर्सिंग प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ और जुड़ जाओ हमारे इस मिशन पर, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1, a nurse is inserting a nasogastric tube for gastric decompression in a patient admitted with a small bowel obstruction. During the insertion, the patient suddenly develops severe coughing, dyspnea and cyanosis. What is the most immediate and critical nursing action? A. Advance the tube quickly to secure its position in the stomach. B. Withdraw the tube immediately and reassess the patient's respiratory status. C. Aspirate gastric contents to confirm placement and then secure the tube. D. Clamp the tube and instruct the patient to take deep breaths to clear the airway. Correct answer B. Explanation: severe coughing, dyspnea और साइनोसिस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के ट्रेकियल मिसप्लेसमेंट के क्लासिक साइंस हैं। यानी ट्यूब गलती से ट्रेकिया में चली गई है इंस्टेड ऑफ इसोफेगस। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, क्योंकि इससे पेशेंट का एयरवे ब्लॉक हो सकता है और एस्पिरेशन न्यूमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है। इस सिचुएशन में मोस्ट इमीडिएट और क्रिटिकल नर्सिंग एक्शन है ट्यूब को तुरंत विथड्रॉ करना और पेशेंट के रेस्पिरेटरी स्टेटस को रीअसेस करना। एयरवे पेटेंसी पेशेंट की सेफ्टी के लिए टॉप प्रायोरिटी है। फुरुदगा ए एडवांस द ट्यूब सिचुएशन को और खराब कर देगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ाएगा। ऑप्शन सी एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट्स प्लेसमेंट कंफर्म करने के लिए है, पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस पर यह एक्शन बहुत लेट होगा। ऑप्शन डी क्लैंप द ट्यूब एंड डीप ब्रेथ्स, ट्यूब को क्लैंप करने से भी एयरवे क्लियर नहीं होगा अगर वो ट्रेकिया में है। क्वेश्चन 2, an intubated patient in the intensive care unit is receiving mechanical ventilation. While performing routine care, the nurse observes that the endotracheal tube marking at the lip has changed from 22 cm to 25 cm and breath sounds are now diminished on the left side. The patient's SpO2 has dropped from 98% to 92%. What is the most appropriate initial nursing intervention? A. Request a stat chest X-ray to confirm tube position. B. Deflate the cuff, withdraw the tube to the original marking and reinflate the cuff. C. Notify the physician immediately and prepare for reintubation. D. Manually ventilate the patient with 100% oxygen using a bag mask device. Correct answer B. Explanation: ET tube marking का चेंज और diminished breath sounds on the left side, साथ ही SpO2 drop सजेस्ट करता है कि ET ट्यूब राइट मेनिस्टेम ब्रोंकस में स्लिप हो गया है। राइट मेनिस्टेम ब्रोंकस लेफ्ट से ज्यादा स्ट्रेट होता है, इसलिए ट्यूब इजीली वहां एंटर कर जाती है, कॉजिंग लेफ्ट लंग कोलैप्स और हाइपोक्सीमिया। इस इमरजेंसी में मोस्ट एप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन है कफ को डिफ्लेट करना, ट्यूब को ओरिजिनल मार्किंग तक विड्रॉ करना और कफ को रीइन्फ्लेट करना। इस एक्शन से ट्यूब को करेक्ट पोजीशन पर वापस लाया जाता है, अलाउइंग वेंटिलेशन टू बोथ लंग्स। ऑप्शन ए स्टैट चेस्ट एक्सरे इंपॉर्टेंट है, पर यह एक डायग्नोस्टिक टूल है, इमीडिएट इंटरवेंशन नहीं।
Option C, notify physician and re-intubate may be needed if basic maneuvers fail पर first try repositioning. Option D, मैनुअली वेंटिलेट ऑक्सीजनेशन को टेम्पररी इंप्रूव करेगा पर अंडरलाइंग प्रॉब्लम मैल पोजिशन्ड ट्यूब को एड्रेस नहीं करेगा. क्वेश्चन 3, a patient with a newly inserted central venous catheter CVC in the right subclavian vein complains of sudden sharp chest pain and dyspnea shortly after insertion. The nurse notes decreased breath sounds on the right side and a tracheal deviation to the left. The nurse immediately suspects a pneumothorax. What is the priority nursing action? A, place the patient in a Trendelenburg position. B, administer oxygen via a non-rebreather mask at 15 liters per minute. C, prepare for immediate chest tube insertion on the affected side. D, notify the physician and prepare a chest x-ray. Correct answer B. एक्सप्लेनेशन सीवीसी इंसर्शन के बाद सडन शार्प चेस्ट पेन, डिस्पनिया, डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स ऑन द अफेक्टेड साइड राइट और ट्रैकियल डिविएशन टेंशन न्यूमोथोरैक्स के क्लासिक साइंस हैं. टेंशन न्यूमोथोरैक्स एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें एयर प्लूरल स्पेस में ट्रैप हो जाती है, लीडिंग टू लंग कोलैप्स और मीडियास्टाइनल शिफ्ट. प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन है इमीडिएट हाई फ्लो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना वाया अ नॉन रीब्रीदर मास्क. इससे पेशेंट की हाइपोक्सीमिया को एड्रेस किया जाता है जब तक मेडिकल इंटरवेंशन, नीडल डिकम्प्रेशन, चेस्ट ट्यूब प्रोवाइड ना हो. ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बढ़ाएगा. ऑप्शन सी, प्रिपेयर फॉर चेस्ट ट्यूब, ये मेडिकल इंटरवेंशन है, नर्स की इमीडिएट इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं. ऑप्शन डी, नोटिफाई फिजिशियन एंड एक्सरे, इंपॉर्टेंट है पर ऑक्सीजनेशन से पहले नहीं. एक्सरे डायग्नोस्टिक है, ट्रीटमेंट नहीं. क्वेश्चन 4, a patient with a Foley catheter inserted 2 days ago for urinary retention is now complaining of severe lower abdominal pain and bladder spasms. The nurse notes very scant dark colored urine output despite adequate fluid intake. Upon assessment, the nurse palpates a distended bladder. What is the most appropriate initial nursing intervention? A, administer a prescribed antispasmodic medication. B, increase intravenous fluid rate to flush the catheter. C, assess the catheter and tubing for kinks or obstructions. D, irrigate the Foley catheter with sterile saline as per protocol. Correct answer C. Explanation: severe lower abdominal pain, bladder spasms, scanty dark urine और distended bladder इंडिकेट करता है कि फोली कैथीटर ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकता है. मोस्ट एप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन है कैथीटर और ट्यूबिंग को किंक्स या ऑब्स्ट्रक्शंस जैसे क्लॉटेड ब्लड या म्यूकस प्लग्स के लिए एसेस करना. ये एक नॉन इन्वेजिव एक्शन है जो ऑफन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. अगर किंकिंग या ऑब्स्ट्रक्शन विजिबल हो तो यूज करेक्ट करना चाहिए. ऑप्शन ए, एंटीस्पेज्मोडिक, सिर्फ सिम्टम्स को मास्क करेगा, अंडरलाइंग ऑब्स्ट्रक्शन को एड्रेस नहीं करेगा. ऑप्शन बी, इंक्रीज आईवी फ्लूइड्स, ऑब्स्ट्रक्शन होने पर ब्लैडर डिस्टेंशन को और बढ़ाएगा. ऑप्शन डी, इरिगेट कैथीटर, अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर ना हो विजिबल इंस्पेक्शन से तब ये नेक्स्ट स्टेप हो सकता है, पर पहले नॉन इन्वेजिव चेक करना जरूरी है. क्वेश्चन 5, a patient with a peritoneal dialysis catheter develops cloudy peritoneal effluent, abdominal pain and a low grade fever. The nurse suspects peritonitis. What is
the most appropriate immediate nursing action? A. Administer a prescribed broad spectrum antibiotic intravenously. B. Collect a specimen of the peritoneal effluent for culture and sensitivity. C. Increase the dwell time of the next dialysis exchange. D. Remove the PD catheter and prepare for hemodialysis. Correct answer B. Explanation: cloudy peritoneal effluent, abdominal pain और लो ग्रेड फीवर पेरिटोनाइटिस के क्लासिक साइंस है जो पीडी की एक कॉमन और सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। मोस्ट एप्रोप्रिएट इमीडिएट नर्सिंग एक्शन है पेरिटोनियल एफ्लुएंट का स्पेसिमेन कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए कलेक्ट करना। ये स्पेसिफिक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने और एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी को गाइड करने के लिए क्रूशियल है। एंटीबायोटिक्स ऑफन एडेड टू द डायलाइसेट यूजुअली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होते हैं। ऑप्शन ए एडमिनिस्टर आईवी एंटीबायोटिक। पीडी पेरिटोनाइटिस के लिए एंटीबायोटिक्स यूजुअली डायलाइसेट में दिए जाते हैं और कल्चर रिजल्ट से पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक देना आइडियल नहीं होता। ऑप्शन सी इंक्रीज ड्वेल टाइम इंफेक्शन को और प्रमोट कर सकता है। ऑप्शन डी रिमूव पीडी कैथीटर, ये लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन है जब एंटीबायोटिक्स फेल हो जाते हैं या सीवियर केसेस में, और ये मेडिकल डिसीजन है। क्वेश्चन 6, a nurse is caring for a patient with a chest tube connected to a 3-chamber drainage system, Plurivac. The nurse observes continuous bubbling in the water seal chamber. The patient is ambulating and their breath sounds are clear. What should the nurse suspect and prioritize in this situation? A. Resolution of the pneumothorax requiring chest tube removal. B. An air leak in the chest tube system. C. The patient is experiencing increased respiratory effort. D. The water seal chamber has too much water. Correct answer B. Explanation: continuous bubbling in the water seal chamber typically air leak indicate करता है। न्यूमोथोरैक्स रिजॉल्व होने पर बबलिंग मैंड हो जाती है। इंटरमिटेंट बबलिंग विथ रेस्पिरेशंस में स्टिल बी प्रेजेंट इनिशियली। क्लियर ब्रेथ साउंड्स और एम्बुलेटिंग पेशेंट इंडिकेट करते हैं कि लंग री एक्सपेंशन हो रहा है, पर कंटिन्यूअस बबलिंग स्टिल सजेस्ट्स प्रॉब्लम। इसलिए नर्स को एयर लीक को सस्पेक्ट करना और प्रायोरिटाइज करना चाहिए। नर्स को सिस्टम को सिस्टमैटिकली चेक करना चाहिए फ्रॉम द इंसर्शन साइट टू द ड्रेनेज सिस्टम टू लोकेट द सोर्स ऑफ द लीक। फॉर एग्जाम्पल लूज कनेक्शन, क्रैक इन ट्यूबिंग, इशू एट इंसर्शन साइट। ऑप्शन ए रिजोल्यूशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स इंटरमिटेंट बबलिंग इंडिकेट करता है, कंटिन्यूअस नहीं। ऑप्शन सी इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट इंटरमिटेंट बबलिंग को बाधा सकता है पर कंटिन्यूअस बबलिंग इंडिकेट नहीं करता। ऑप्शन डी दो मच वाटर सील चेंबर में वाटर लेवल से कंटिन्यूअस बबलिंग नहीं होती। क्वेश्चन 7, a patient receiving continuous enteral nutrition via a gastrostomy tube, G tube, suddenly develops severe abdominal distension, nausea and vomiting. The nurse notes that the enteral feeding pump is alarming due to occlusion. What is the most appropriate initial nursing intervention? A. Administer an antiemetic and hold the feeding temporarily. B. Flush the gastrostomy tube with warm water using a 60 ml syringe. C. Aspirate gastric residuals to check for delayed gastric emptying. D. Reposition the patient to the right side lying position
to promote gastric emptying. Correct answer B. Explanation: severe abdominal distension, nausea, vomiting और occlusion alarm on the feeding pump suggest करता है कि गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब क्लॉग्ड हो गया है। इस सिचुएशन में मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब को वार्म वाटर से फ्लश करना। वार्म वाटर क्लॉग को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है और 60 ml सिरिंज से जेंटल प्रेशर अप्लाई किया जाता है टू प्रिवेंट ट्यूब रप्चर। स्मॉलर सिरिंजेस से हाई प्रेशर जनरेट हो सकता है जो ट्यूब को डैमेज कर सकता है। ऑप्शन ए एंटी एमेटिक एंड होल्ड फीडिंग सिम्टम्स को मैनेज करेगा पर अंडरलाइंग कॉज क्लॉग को सॉल्व नहीं करेगा। ऑप्शन सी एस्पिरेट गैस्ट्रिक रेजिड्यूल्स इंपॉर्टेंट है पर ट्यूब क्लॉग होने पर यह पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन डी रीपोजिशन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग में हेल्प कर सकता है पर क्लॉग्ड ट्यूब को क्लियर नहीं करेगा। क्वेश्चन 8, A patient with a peripheral arterial line in the radial artery shows a dampened waveform on the monitor with no clear dicrotic notch and the mean arterial pressure MAP reading is lower than expected despite stable vital signs. What is the most appropriate initial nursing action? A. Flush the arterial line vigorously with heparinized saline. B. Zero the transducer and check for kinks in the tubing. C. Remove the arterial line and apply direct pressure to the site. D. Recalibrate the arterial line setup with a new transducer. Correct answer B. Explanation: dampened waveform और no clear diatrotic notch arterial line monitoring में improper calibration, air bubbles, kinks या ट्रांसड्यूसर माल पोजीशन को इंडिकेट करता है। मैप रीडिंग का लोअर देन एक्सपेक्टेड होना भी एक्यूरेसी इशू को पॉइंट करता है। इस सिचुएशन में मोस्ट एप्रोप्रिएट इनिशियल नर्सिंग एक्शन है ट्रांसड्यूसर को जीरो करना यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस पॉइंट पर कैलिब्रेट करना और ट्यूबिंग में किंक्स या एयर बबल्स चेक करना। ये सिंपल स्टेप्स ऑफन वेवफॉर्म को करेक्ट करते हैं और एक्यूरेट रीडिंग्स रिस्टोर करते हैं। ऑप्शन ए फ्लश विगोरसली अगर क्लॉट सस्पेक्ट हो तब किया जाता है पर डैम्पेंड वेवफॉर्म का फर्स्ट स्टेप ये नहीं है और विगोरस फ्लशिंग से एम्बोली का रिस्क होता है। ऑप्शन सी रिमूव आर्टीरियल लाइन लास्ट रिजॉर्ट है जब ट्रबल शूटिंग स्टेप्स फेल हो जाएं। ऑप्शन डी रिकैलिब्रेट विथ न्यू ट्रांसड्यूसर ये तब किया जाता है जब जीरोइंग और ट्रबल शूटिंग फेल हो। क्वेश्चन 9, a nurse is preparing to remove a chest tube from a patient whose lung has fully re-expanded and drainage has ceased. Which instruction to the patient is most critical during the actual removal process? A. Take several deep breaths and hold your breath for as long as possible. B. Exhale forcefully and continuously as the tube is being removed. C. Inhale deeply, then bear down as the tube is being removed. D. Breathe normally and try to relax during the procedure. Correct answer C. Explanation: चेस्ट ट्यूब रिमूवल के दौरान वाल्साल्वा मैन्यूवर, डीप इनहेल करना और फिर बियरिंग डाउन मोस्ट क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन है पेशेंट के लिए। इस मैन्यूवर से इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होता है जिससे एयर को प्लेउरल स्पेस में री एंटर करने से रोका जाता है जब ट्यूब रिमूव की जाती है। ये न्यूमोथोरेक्स के रिकरेंस का रिस्क मिनिमाइज करता है। ऑप्शन ए होल्ड ब्रेथ, इससे
इंट्राथोरेसिक प्रेशर उतना इफेक्टिवली इंक्रीज नहीं होगा जितना वाल्साल्वा से होता है। ऑप्शन बी, एक्सेल फोर्सफुली इंट्राथोरेसिक प्रेशर को कम करेगा जो एयर एंट्री का रिस्क बढ़ाएगा। ऑप्शन डी, ब्रीद नॉर्मली एयर एंट्री का हाई रिस्क रखता है। क्वेश्चन 10, A patient with a subclavian central venous catheter requires a blood specimen to be drawn. The nurse attempts to aspirate blood but encounters resistance and no blood return. The nurse then attempts to flush the line with 10 ml of normal saline but also encounters resistance. The patient reports no pain or swelling. What is the most likely cause of this issue? A, catheter tip migration into a smaller vessel. B, formation of a fibrin sheath around the catheter tip. C, pneumothorax due to catheter malposition. D, catheter related bloodstream infection. Correct answer B. एक्सप्लेनेशन, रेजिस्टेंस अपॉन एस्पिरेशन और फ्लशिंग यानी ऑक्लूजन, पेन या स्वेलिंग की एब्सेंस सजेस्ट करता है कि कैथीटर ल्यूमेन पार्शियली या कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो गया है। इस सिनारियो में मोस्ट लाइकली कॉज है फिब्रिन शीथ का फॉर्मेशन कैथीटर टिप के अराउंड। फिब्रिन शीथ बॉडी के नेचुरल हीलिंग रिस्पॉन्स का पार्ट है, जहां फिब्रिन कैथीटर के आउटर सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है और कैथीटर टिप को कवर कर लेता है, ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता है और एस्पिरेशन और फ्लशिंग को डिफिकल्ट बना देता है। ऑप्शन ए, कैथीटर टिप माइग्रेशन ब्लॉकेज का कॉज हो सकता है, पर फिब्रिन शीथ ज्यादा कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है। माइग्रेशन से पेन या स्वेलिंग भी हो सकती है। ऑप्शन सी, न्यूमोथोरा एक्स, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, चेस्ट पेन और डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स प्रेजेंट होंगे, ना कि रेजिस्टेंस टू फ्लश। ऑप्शन डी, कैथीटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, फीवर, चिल्स, रेडनेस और डिस्चार्ज एट द साइट जैसे साइंस के साथ प्रेजेंट होगा, ना कि सिर्फ मैकेनिकल ऑक्लूजन। वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक करें, शेयर करें और चैनल नर्स विकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये एमसीक्यूज आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम।